السلام علیکم ناظرین، میں سرفراز ساگر اور آپ دیکھ رہے ہیں آج رمضان ٹرانسمیشن کی فضیلت رمضان سحری کا ایک خصوصی پروگرام۔ میرے ساتھ موجود ہے میری کو ہوسٹ زینب چودھری۔ کیسی ہیں زینب آپ؟ السلام علیکم، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ آج ہمارے مہمانوں میں میں ان کا تعارف آپ کو کراتا چلوں۔ بڑی معروف شخصیات ہمارے ساتھ آج موجود ہیں۔ ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب بہت معروف شخصیتیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ان کے ساتھ جو موجود ہیں وہ علی محمد صدیقی صاحب، شجر، اور خاص طور پہ ایک درخت دوست ہیں، یہ شجر کے دوست ہیں۔ ان کا کام ہے شجرکاری کو، یعنی کہ پاکستان کو گرین کرنا، یعنی ہریالی جو ہے ان کو پسند ہے اور یہ اس میں کافی اچھا کامیاب بھی ہوتا ہے۔ ان کے برابر میں نامی گرامی شخصیت ہمارے جج، ہمارے پروگرام کے جج، جو تعارف میں کر رہا ہوں یہ وہ خود اپنا تعارف کریں گے۔ بابا درویش کریمی، بابا درویش کریمی کراچی کا گولڈن جوبلی جرنلسٹ، ماشاء اللہ۔ تو ہم باقاعدہ اب پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ زینب، تو تلاوت کلام پاک ہم سنتے ہیں بابا کریمی درویش صاحب سے، جی تو اگر آپ کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل ربک وانحر ان شانئک هو الابتر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ماشاء اللہ۔ تلاوت کلام پاک بابا سرکار نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی، میں باقاعدہ پروگرام کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ ہم سب سے پہلے پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب سے کچھ بات کریں گے۔ کیسے ہیں آپ سرکار؟ ٹھیک ہے؟ خیریت سے؟ یہ بہت مشکلوں سے آپ ٹائم نکالتے ہیں، آپ ماشاء اللہ سے آج ہماری خوشنصیبی بھی ہے کہ رائل نیوز کے اندر آپ نے ٹائم نکالا، اور وہ بھی ابھی آپ جب آف دا ریکارڈ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے مجھ سے کہا کہ شارٹ ٹائم میں مجھے ذرا جلدی ریلیز کر دیجیے گا یہاں سے۔ تو اب ہم باقاعدہ سحری کا ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، تو اس سحری کے پروگرام میں جب آپ بیٹھیں گے تو شاید ہو سکتا ہے آپ پورا پروگرام کر کے ہی جائیں۔ اب جب پروگرام ہوگا ہمارا، جب شروع ہوگا تو اطلاع کے لیے کہ میں واقعی صبح بھی 9 بجے سے میں ایک پروگرام کیا، جی 11 بجے فارغ ہوا وہاں سے، پھر ایک اور پروگرام کر کے وہاں سے 1:30 بجے فارغ ہوا، آپ کے پاس آیا، یہاں سے پھر مجھے پیشنٹ انتظار کر رہے ہیں۔ جی نہیں، ہم انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی ریلیز کر دیں گے۔ اور پھر رات کو پھر میرا شام 6 بجے کے بعد پھر پروگرام ہے، اور پھر رات 11 سے 3 بجے پروگرام ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ سوتے کب؟ میں نے کہا آپ سونے نہیں دیتے، ہم سونے نہیں کھاتے۔ آپ ہمیں سونے دیں گے تو ہم سونے دیں۔ زندگی کے راستے کچھ اس طرح سے طے کیے، جی یہ ہمارا اپنا شعر ہے۔ زندگی کے راستے راستے کچھ اس طرح سے طے کیے، تھک گئے تو سو گئے، اٹھ گئے تو چل چلے۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے عسکری صاحب، ہم نے ایک پروگرام کیا تھا ایک آنچ نیوز کے اندر آپ کے ساتھ، ایک مجھے کام کیا تھا جس میں نے بھٹو صاحب کا لقب دیا تھا کہ جی، کیونکہ آپ کا جو فیض ہے ماشاء اللہ سے وہ بہت زیادہ بھٹو صاحب سے ملتا ہے۔ تو بھٹو صاحب سے جو آپ کو یہ فیض ملتا ہے، اس سے مشاورت کرتا ہے، تو ان کے بارے میں کیا آپ تخلیق کیا چیزیں دیکھتے ہیں؟ آپ ان کو اچھا سمجھتے تھے یا آپ ان کو قریب سے جانتے تھے بھٹو صاحب کو، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے بالکل فیض تیرا جو ہے فیض ٹو فیض جو ہے ان کو کیا؟ بس اس میں یہ ہے کہ بے نظیر صاحبہ سے بہت قریبی ہمارے تعلقات تھے۔ جب میں امریکہ میں تھا، میں 19 سال امریکہ میں رہا ہوں، وہیں سے میں نے PhD بھی کیا ہے، ڈاکٹر ڈیزائن نیوکلیئر میڈیسن میں ڈاکٹریٹ کیا، ہربل سائنسز میں، اور مذاہب عالم پر میرا PhD ہوا۔ تو یہ بے نظیر ان دنوں میں یونیورسٹی میں تھی، تو وہاں پر ہمارے کانوکیشن جب ہوتا تھا تو اس دوران میں ملاقاتیں رہتی تھیں۔ پھر بعد میں جب وزیر اعظم ہوئی تو مجھے کہتی ہے کہ عسکری یو آر لوکنگ لائک مائی پاپا،
मैं कहा I'm not looking like your papa. Your papa looking like you. बड़ी अच्छी बात है। पापा के फैज आपका जो है वो मेरे पापा ने क्लियर करा, नहीं मुझे नहीं मेरा मेरी नकल उन्होंने की। अच्छा वो कह रही थी कि मैं फिल्म बनाना चाहती हूँ जुल्फ़कार भुट्टो पर, आप उसका किरदार अदा करना है। हमारा अल्लाह ने उनको जिंदगी दी थी, बहुत खत्म हो गया उनकी जिंदगी। प्रोफेसर डॉक्टर हकीम, माशाल्लाह प्रोफेसर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, हकीम भी हैं, तो हिकमत के हवाले से कुछ नाज़रीन हमारे देखने वाले जो हैं वो आप कुछ आपसे चाहते हैं कि हिकमत के हवाले से वो आपसे पूछें, आप उनको बताएं कि ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक के महीने में रोज़े के दौरान रोज़ा हिकमत क्या है? देखिए रमज़ान शरीफ शुरू होते ही आदमी की ज़िंदगी का सारा जो पूरा साल रूटीन होता है, खाने पीने ओढ़ने बिछाने का, वो चेंज हो जाता है। और इब्तदाई जो पहला अशरा जो गुजरता है तो उस अशरे में बड़ा ग़िज़ा की तरफ मोहतात होना चाहिए, क्योंकि अब हमें 24 घंटे में सिर्फ चंद घंटे के लिए खाना है, एक सहरी और एक अफ्तार। जी अब उस टाइम में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए कि जो कि आपके निज़ाम हज़म को बेहतर रखे। मसलन दूध का इस्तेमाल, दूध में पानी डालें, पानी मिला के इस्तेमाल करें तो प्यास कम लगेगी। दही का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, फलों का और सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, जूसेस पिए। इसी तरह जौ का दलिया सहरी में इस्तेमाल करें। लोग पराठे खाते हैं या निहारी या ऐसे ऑयलिंग बना लेते हैं, तेल की चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो वो फिर उनके लिए सारा दिन गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बाज़ लोग तो 3-3, 4-4 पराठे खा लेते हैं कि घर में भूख ना लगे और ऊपर पानी पी लेते हैं, जिसकी वजह से उनका निज़ाम हज़म मुतासर हो जाता है, पेट फूल जाता है और गैस्ट्रिक का और एसिडिटी का शिकार हो जाते हैं। और ये रोज़े की हालत में फिर बहुत मुश्किल हो जाता है मरीज़ का, यानी वो बजाय रमज़ान की फजीलत से फैज़ याब हो, वो रमज़ान में अपने आप को बीमार कर लेते हैं। ये शफा का महीना है, बरकतों रहमतों नेमतों का महीना है, और इसी महीने में जिस्म, रूह और ईमान जो है इसकी ताज़गी होती है और ये इसी की बालिदगी होती है। रमज़ान का मतलब ये है कि आपके अंदर से जो टॉक्सिन्स हैं, जो फासिद मादे हैं, जो जहरीले मादे हैं, समझिए ना, वो जिस्म से निकलेंगे, जिस्म और उसके बाद रूह, जो कसाफत रूह की होती है, जो बंदे के ज़हन और जिस्म में गलाज़त आती है, उससे भी पाक ये रमज़ान करता है, ईमान को मजबूत करता है। फिर ये कि चीज़ें रमज़ान में हमें जिन जिन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना है उसमें तमाम किस्म के मौसमी फल हैं, ये वाफिर मकदार में इस्तेमाल किया जाए और कोशिश की जाए कि पानी जो है वो थोड़ा इस्तेमाल करें, थोड़ा पिए। बाज़ लोग जो है वो रोज़ा अफ्तार होते ही 2-3 गिलास पानी देते हैं। या उससे एक और बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल। अक्सर देखने में आया है कि कोल्ड ड्रिंक फ़ौरन लोगों ने अफ्तार में पिया और वो हस्पताल हो गए, हॉस्पिटलाइज हो गए। और उसकी वजह क्या है कि मैदा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, उल्टियाँ और मोशन शुरू हो गए और बाज़ औक़ात तो दुनिया से भी चले गए। ये अक्सर देखने में आया है कि लोग बच्चे जो है उनको अफ्तार का बड़ा शौक़ होता है और जो बच्चों को आप अफ्तार करवाते हैं तो फिर उनको वो चीज़ें दें जो उनको हज़म हो सके। देखिए इस बहुत पूरा साल आदमी वो चीज़ें खाता है जो रमज़ान में नहीं खाता, और जो रमज़ान में खाता वो पूरा साल नहीं खाता। अब देखिए कि समोसे, पकौड़े, ऐसी चीज़ें जो है आम रूटीन में नहीं खाते, आम रूटीन में नहीं खाई जाती। ये आपका समोसों और पकौड़ों और चाट वगैरह का सिलसिला जो है। फ्रूट भी हम ज़्यादातर जो है रमज़ान में इस्तेमाल करते हैं। फ्रूट हालांकि ताकत है लेकिन हम रोज़ों से ही ऐसे ही जो है चने की चाट है, काले चने हैं, वो बहुत ताकतवर होती है। चना है, जौ का दलिया है, जौ की रोटी है, तो उसमें मैं ये कहता हूँ सहरी में चावल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना ही गोश्त ज़्यादा खाएं। आप घिया, तोरी, लौकी, टींडे, कद्दू का इस्तेमाल रखें। और यही रमज़ान जो है
ये बहुत सारे अमराज को जिस्म से निकाल देते हैं। पाकिस्तान में अली मोहम्मद सिद्दीकी साहब जिस तरह मौसमियाती तब्दीली जो है वो पूरे दुनिया में जिस तरीके से हमारा जो सिस्टम माउट हुआ है, जो घूमी है दुनिया घूमी है, तो मौसमियाती तब्दीली भी आई है। पाकिस्तान के अंदर हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी ये कि हमने दरख्त लगाना छोड़ दिए, दरख्तों को काटना शुरू कर दिया। तो शजरकारी मुहिम के हवाले से आपसे मैं थोड़ी सी ये बात करना चाहूँगा कि क्या पैगाम दे रहे हैं आप हमारी इस कौम को कि दरख्त जो है वो लगाना कितना ज़रूरी है इस मुल्क और इस कौम के लिए, ख़ुसूसी तौर पर गर्मियों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो खुदा का जिक्र करे, खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुंह में हो वैसी ज़बान खुदा ना करे। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि एक तो सबसे पहले इतना प्यारा नाम है, खूबसूरत नाम लगता है फजीलत रमज़ान। तो हम थोड़ी सी फजीलत रमज़ान पे बात करते हैं, साथ ही शजरकारी को भी इसके साथ इंक्लूड कर देते हैं। तो किस तरह करते हैं कि अल्लाह रब्बे करीम ने रमज़ान करीम अता किया, अल्लाह रब्बे करीम ने रमज़ान करीम अता किया और उसके फ़ौरन बाद कुरान करीम अता किया रमज़ान में। तो हमारे लिए तो एक ही करीम काफ़ी था, लेकिन उस करीम ने कितने करीम हमारे को अता कर दिए, ये जितना सुभान अल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करें और शुक्र अल्लाह रब्बिल आलमीन के कम है। इसके बाद ये देखें कि दीन क्या कहता है, शजरकारी के बारे में दीन क्या कहता है। हम अगर साइंस को एक तरफ भी रखते हैं, सिर्फ अपने दीन को अपना लें और जब अपने दीन पर चलना शुरू करें, तो आप ये देखें कि जब मूसा कलीमुल्लाह कोई दूर पे जाते थे और अल्लाह से कलाम करते थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक शजर की शबी में जवाब देते थे। जो जवाब आता था वो एक शजर की शबी थी। तो कितना ज़रूरी हुआ हमारे लिए शजर। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जब तख्लीक की गई और उन्हें जन्नत में भेजा गया, तो वहाँ पर शजर ममनुआ पहले से मौजूद था, यानी कि दुनिया की तख्लीक से पहले भी शजर ममनुआ मौजूद है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो बार बार इंडिकेट किया है, हमें इंडिकेट किया है कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ज़िंदगी होगी वो ऑक्सीजन होगी, और ऑक्सीजन के लिए ज़रूरी होगी वो शजरकारी होगी। इससे ज़्यादा ज़रूरत और क्या हो सकती है। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात की आपने। फजीलत रमज़ान से आपने लेकर शजरकारी मुहिम तक आप उसको लेकर आए और बड़े अच्छे अंदाज में लेकर आए। दरवेश ही था बाबा दरवेश कलीम था। अभी बड़ी अच्छी बात की हमारे सिद्दीकी साहब ने और अस्करी साहब ने, बड़ी अच्छी बात है इस मौजू पर, जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं चल रहे हैं। तो आप हमारे यहाँ जज भी हैं और नेक्स्ट हमारे जिस तरीके से अब बच्चों के जो नातों का जो मुकाबला शुरू होने वाला है नेक्स्ट टाइम से हम आगे, तो आप उसके जज भी हैं और आप माशाल्लाह से आप वाहिद आदमी हैं जो पूरे 30 के 30 प्रोग्राम के अंदर हैं वो आप बैठ रहे हैं। ये हमारी भी खुशनसीबी है कि आप जैसी शख्सियत हमारे प्रोग्राम के अंदर बैठ रहे हैं। तो फजीलत रमज़ान हमारा जो प्रोग्राम है फजीलत रमज़ान, तो फजीलत रमज़ान आज की शख्सियत जो हमारे साथ मौजूद है, जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब और अली मोहम्मद सिद्दीकी साहब, तो इनके हवाले से, इनको देखते हुए इस रमज़ान फजीलत रमज़ान के हवाले से क्या कहना चाहिए? देखिए, ये अभी प्रोफेसर हकीम अस्करी साहब ने रोज़े से मुतालिक बड़ी अच्छी बात कही कि रोज़ा एक तरह से हमारी जिस्मानी तरबियत के लिए, हमारी जिस्मानी इलाज के लिए एक बेहतरीन हल है। और अच्छा, उसके लिए हकीम साहब ने यही फरमाया कि अफ्तार के वक्त लाइट सी ग़िज़ा ली जाए, खजूर खाई जाए या चाट है फ्रूट वाली वो ली जाए, तली चीज़ों इस्तेमाल किया जाए और ज़्यादा पानी या शरबत वो न पिया जाए। इससे क्या होगा कि जिस्म को, मैदे को भरा रहेगा और फ़ौरन ही अल्लाह ताला ने नमाज का हुक्म फरमाया। तो जहाँ हम एक तरफ लाइट ग़िज़ा ले रहे हैं और फिर नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो हमारा जिस्म जो है वो बेहतर रहेगा और आने वाले रोज़े की तैयारी भी कर लेगा। तो हकीम साहब के हवाले से ये बात बड़ी अच्छी थी कि आपने फरमाया कि लाइट ग़िज़ा लें, तलीम चीज़ों से इज्तनाब करें, खाएं, लेकिन तरजीह दें पहले खजूर को और फ्रूट चाट, और उस दरमियान में पानी बेतहाशा ना पिए, चंद घूंट पी ले ताकि वो प्यास बुझ जाए। अच्छा, अब माशाल्लाह शजर दोस्त जो है, जो चाहते हैं कराची को ग्रीन सिटी बनाएं, बल्कि इनके अज़ाइम तो बड़े ख़तरनाक, बड़े मुबारक हैं, खतरनाक नहीं कहूँ, मुबारक हैं कि पूरे पाकिस्तान को सदाबहार और ग्रीन देखना चाहते हैं। खतरनाक भी कह सकते हैं कि खतरनाक उन लोगों के लिए हमारे अज़ाइम है जो दरख्त काट रहे हैं, तो उनके लिए हमारा बहुत खतरनाक है। हम इंशाअल्लाह शजरकारी करते रहेंगे। अली सिद्दीकी साहब का कोई दिन, कोई शाम, कोई सुबह ऐसी नहीं गुजरती है, चाहे वो रमज़ान के दिन हो, चाहे वो शाबान के दिन हो, चाहे वो कोई से दिन हो, आपकी शजरकारी मुहिम जो है
खिदमत खल्क़ के हवाले से, इबादत के हवाले से जारी रहती है। तो माशाल्लाह अब फजीलत रमज़ान में अगर आप ये रोज़ा रखकर नमाज़ों की अदायगी के साथ, तरावी की अदायगी के साथ अगर शजरकारी करते हैं तो अल्लाह तो सबको देख रहा है, जान रहा है, तो इंशाल्लाह इनको और अजर मिलेगा। अब आपने बड़ी प्यारी बात की कि अल्लाह ताला ने इस रमज़ान करीम और जनाब कुरान करीम इस तरह तमाम बरकतें, रहमतें उसकी करीम में शामिल होगी। तो माशाल्लाह ये फजीलत रमज़ान का एक बेहतरीन तकाज़ा है कि हम अपने अखलाक को, अपने अमाल को, अपने ईमान को तरोताज़ा करें, बनाएं। ये एक तरबियत का, ट्रेनिंग का मुफ्त में एक अल्लाह ताला ने तोहफा दिया है। इसमें हमारे अमाल दुरुस्त होंगे तो हमारी नई नस्ल पे, जो हमारी नस्ल है, हमारी औलाद है, हमारा घर का माहौल है, वो तब्दील होगा। जब घर का माहौल तब्दील होगा तो हमारा अर्का बाप जो है उस पर भी असरात पड़ेंगे। तो ये एक तरह से ये बड़ी फजीलत है रमज़ान की कि माशाल्लाह अल्लाह की तरफ से एक ट्रेनिंग का महीना आता है। इसमें अगर हम कर लें तो हमारे ये माशरे की इस्लाह भी हो जाएगी। पाकिस्तान हर शख्स अगर ये जिम्मेदारी महसूस कर ले कि फजीलत रमज़ान का जो पैगाम है वो हमें अपने ऊपर अप्लाई करना है। अगर हम अपनी जिम्मेदारियाँ फ़र्द वाहिद नेकी की इब्तिदा, फजीलत की इब्तिदा और अच्छे काम की इब्तिदा अपने घर से कर लें तो इसमें उसके असरात यानी इज्तिमाई तौर पर माशरे में अच्छे ज़ाहिर होंगे। तो ये बड़ी बरकत है। बिल्कुल बहुत अच्छी आपने बात की बाबा जी। हमारा करते ही अच्छी बात है ना, जब भी हमारे जितने भी प्रोग्राम हमारे चले उसके अंदर इनका तज्जिया और इनकी तहकीक और इनकी फजीलत रमज़ान के हवाले से जितनी भी बातें की, जितने भी लोगों को जो पैगाम दिए, जो लोग इंतज़ार करते हैं बाबा जी का। मैं अक्सर कल भी मैं जब हमारा प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो उसके बाद मेरे पास 2-3 कॉलें आई, उन्होंने कहा कि जी बाबा जी का प्रोग्राम कब चलेगा। तो मैंने कहा कि बाबा जी के वेट हम भी कर रहे होते हैं कब आएंगे, कब हमें अच्छी बात, हाँ कब हमें अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। पाकिस्तान के शजरकारी के हवाले से हम आप बहुत सारी बातें करेंगे अली मोहम्मद सिद्दीकी साहब के, क्योंकि ग्रीन पाकिस्तान ये इनका भी ख्वाब है, हमारा भी ख्वाब है और हर पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोगों का ख्वाब है कि पाकिस्तान जो है वो ग्रीन हो। ग्रीन से मुराद ये है कि जितनी शजरकारी होगी उतना ही इस मुल्क के लोगों को फ़ायदा होगा, उतना ही जो है आवाम जो है वो बहुत इस चीज़ की मुंतज़िर रहती है। क्योंकि हम गर्मी, हम सर्दियाँ तो बर्दाश्त कर लेते हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन गर्मियों का जब सिलसिला शुरू होता है तो गर्मियाँ बहुत मुश्किल से बर्दाश्त होती हैं। जब दरख्त लगे हुए होते हैं, जब चारों तरफ दरख्त होते हैं तो फिर गर्मी का एहसास नहीं होता। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर अली मोहम्मद सिद्दीकी से हम मजीद जो है ना बहुत सारी बातें करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद स्टॉप पहले सब जर्म्स सैनिटाइज। मामा पर इनका क्या? हाँ मैडम, इन दागों में छुपे हुए जर्म्स का क्या करोगी? वो सब राइट कर देगा। राइट? नया एंटीबैक्टीरियल ब्राइट, अब दाग हो या जर्म्स, ब्राइट सब राइट कर देगा। बिल्कुल, नए एंटीबैक्टीरियल ब्राइट का जर्मीशील्ड फॉर्मूला दाग को फाइट करे, जर्म्स को सैनिटाइज करे पूरे 99.9%। देखा, दाग को लेफ्ट और जर्म्स को राइट कर दिया। ये तो ब्राइट ने सब राइट कर दिया। ब्राइट सब राइट कर देगा। नया ब्राइट एंटीबैक्टीरियल। प्रोग्राम में वापस हम खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम जब हम ब्रेक पे जा रहे थे तो अली मोहम्मद सिद्दीकी साहब के हवाले से मैंने शजरकारी के बारे में बात करना चाह रहा था और करूँगा और बहुत तफसीली बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हमारी होस्ट हैं ज़ैनब, उन्होंने कहा कि नहीं जी पहले मैं बात करूँगी अजीज साहब पे। तो क्या पूछना चाह रही हैं? मैं कुछ सवाल करना चाह रहे थे। आजकल देखिए कि शुगर के जो मरीज़ हैं, ये जो बीमारी है शुगर, देखा जाए तो कोई बीमारी नहीं है, बस इसको बनाया गया कि ये बीमारी है, प्लासेंटा हमारा वर्क नहीं कर रहा होता है, तो एक सिंपल सी चीज़ है, इसको बहुत फैला दिया गया है। तो अभी मैंने ये पूछना है आपसे कि शुगर के मरीज़ के लिए अगर कोई दवाई हो बहुत अच्छी, क्योंकि जिनको शुगर होता है उनको वीकनेस भी हो जाती है, बहुत कमज़ोरी हो जाती है,
تو اس کے لیے کوئی اچھی میڈیسن جی یا آپ اپنی کوئی میڈیسن بتانا چاہتے ہیں تو وہ؟ ہاں جی، سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا ہوں جی کہ شوگر کے مریض کو خاص طور پر سحر اور افطار میں محتاط رہنا چاہیے. جی جن چیزوں سے میں نے منع اچھا جی کہ وہ چکنائی یا مرغن غذائیں، پراٹھے، انڈے بہت زیادہ نہیں استعمال کریں. تو ایک انڈا استعمال چاہیے سحری میں. اور اسی طرح جو ہے جو کا دلیا، بیسنی روٹی، یا اگر پکوڑے میں کھانے ہیں تو وہ ایک آدھا پکوڑا ہو. یہ تو سب چیزیں پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہوتی، یہ ذائقے کی نہیں. تو اب یہ دیکھتا ہے کہ شوگر لیول کیا ہے، اور پھر کیا اس کا معالج اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے. یہ معالج سے بھی پوچھا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں شوگر مریض کے پیشنٹس کو خاص طور پہ یہ کہا کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنی نماز کے لیے مسجد میں جائیں، دور کی مسجد دیکھیں تاکہ آپ کی واک ہوتی رہے اور آپ کی واک کنزیوم ہوتا رہے. تو جیسے جیسے یہ کنزیوم ہوتا رہے گا تو شوگر لیول نارمل رہے گا. عموماً شوگر کا جو لوگ کنسیپٹ لیتے ہیں کہ جی 120 122 سے ہماری 160 ہو رہی ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں. 160 یا 70 170 ہونا بھی کوئی پریشان نہیں ہوتا، یہ نارمل ہوتی ہے. اس لیے کہ ہم اپنی غذا میں کبھی میٹھا کھا رہے ہیں اور کبھی کیونکہ بھوکے ہیں تو مسلسل ایک دم جو پیٹ میں کھانا جائے گا تو وہ بھی نقصان دے گا. اور آہستہ آہستہ جیسے بابا جی نے ذکر کیا اس حوالے سے بھی کہ جی تھوڑا تھوڑا غذا کھائیں اور اس کے بعد جو ہے آپ نماز کے لیے چلے جائیں. اور وہ شخص بدترین وہ شخص ہے جو ماہ رمضان میں اس کی فضیلتوں سے محروم ہو گیا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. اور اس نے اس سے فوائد حاصل نہیں کیے. اب آتے ہیں کہ شوگر کا مریض جو ہے وہ اس کو کیا کھانا چاہیے، کیا استعمال کرنی چاہیے. جامن، گٹھلی، نماسا روٹی، گوکھرو، ہلدی، یہ ہم وزن لیں گے اور اس میں برم روٹی کا شامل کریں، وہ خون کو صاف کریں گے. اور اس کو صبح اور شام سحری میں اور افطاری میں، افطار کرتے ہی جیسے آپ افطاری کریں اس کے ساتھ یہ کھا لیں اور اس کے بعد جو ہے نماز پڑھیں. نماز کے دوران میں 15 سے 20-25 منٹ کا وقفہ رکھیں کھانے کا. یہ اس طرح آپ شوگر لیول بھی نارمل ہوتا رہے گا اور مریض جو ہے وہ شوگر کا اس سے نقصانات سے محفوظ رہے گا. ایسے جو جن لوگوں کو تبخیر ہو جاتی ہے، گیسٹرک ہو جاتی ہے، سینے میں جلن شروع ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ سحری کھاتے ہی سو جاتے ہیں، یا رات کو کھانا کھایا، مرغن غذا کھائی اور سو گئے. اور وہ پھر گیسز بنے گی، اس کی ایسیڈیٹی پر تبخیر پیدا ہوگی اور منہ کا ذائقہ تبدیل، سینے میں جلن، کھٹی ڈکاریں، ہارٹ بیٹ تیز اور گھبراہٹ اور بے چینی کی کیفیت ہو جاتی ہے. اور ایسا جو ہے ایسے فرض طور پر میٹھا سوڈا لیں اور ایک گلاس پانی میں لیمو ڈالیے، لیمو ڈال کے میٹھا سوڈا 1/4 چمچ ڈال کے مکس کریں، سیون کی طرح بوائل کر جیسے، اور اسی وقت پی لیں. یہ کھٹی ڈکاریں وغیرہ فوراً بن جائے گی. دوسری صورت ہے سونف، پودینہ، الائچی اور بڑی الائچی. سونف 21 پتے، پودینے سونف 1 چمچ، پودینہ 21 پتے. اسی طریقے سے سونف، الائچی 3 عدد اور بڑی الائچی 2 عدد. ان کا دانے نکالیں اور دانے نکال کر قربانی کر کے اور اس کو پانی میں شام میں 2 گلاس پانی ڈالیں، اس میں بوائل کیجیے. 1 گلاس سحری یہ اور 1 گلاس افطار، یہ اس سے نظام ہضم بھی بہتر ہوگا اور کھانا بھی ہضم ہوگا. یہ بچوں کے لیے خاص طور پر میں کہتا ہوں، بچے جو ہے وہ معصوم بچے بھی روزہ رکھنے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں اور انہیں بھی ان کے لیے خاص طور پر یہ ہے کہ انہیں پھل، سبزی اور بے شک گوشت بھی تھوڑا دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کا دلیا بہت مقوی اور طاقتور ہوتا ہے، وہ اس کا استعمال جو ہے وہ ضرور سحری میں رکھیں. اور جو کے دلیے میں اگر بادام، پستہ، اخروٹ شامل کر لیتے ہیں تو یہ اور بھی طاقتور ہو جاتا ہے اور جو نقاط کمزوری بہت زیادہ مفید ہے. اس دوران میں دودھ دہی کا استعمال زیادہ سے زیادہ رکھیں تاکہ کیونکہ دہی جو ہے وہ ہاضمہ پیدا کرتا ہے. اسی طرح دہی کی لسی پینے سے نظام ہضم بہتر ہوتا ہے، فرق پیدا ہوتی ہے اور تھکاوٹ، کمزوری کا احساس کم ہوتا ہے.
تو یہ تو روزہ کا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزے میں ہم نے جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں اس میں شوگر پیشنٹ کو خاص طور پر جب وہ انسولین کا مریض ہوتا ہے تو اس کو انسولین بعض فتوے آئے ہیں تو ہمارے فتوے دیے کہ ایسے موقع پر انسولین کا استعمال کرنا چاہیے, انجیکشن لگانی چاہیے انسولین کا. اس پہ غذا نہیں ہے نا, لگتا ہے کہ وہ اسکن پہ ہے, مسل پہ نہیں لگتا کیونکہ غذا اور انجیکشن نہیں لگا سکتے, وہ کور کر لیتا ہے. اسی طریقے سے دیکھیں اب میں آپ کو ایک اور بڑی چیز بتاتا ہوں, کیونکہ میں نے اسٹیم سیلس پہ کام کیا ہے, باہر میں نے پڑھا ہے. روزہ باہر جو ممالک ہیں اب روزے پہ تحقیقات جب انہوں نے کی تو یہ روزہ آپ کا جسم سے کینسر ختم کرتا ہے, ہیپاٹائٹس کا خاتمہ کرتا ہے, جو درد ختم کرتا ہے, اور موٹاپا اور کڈنی پرابلم بھی ختم کرتا ہے. یہاں تک کہ جن کو لیور سورائسس ہے یا فیٹی لیور کے شکار ہوئے ہیں یا جن کا بہت ویٹ بڑھا ہوا ہے وہ بھی اگر اس رمضان کی فضیلت سے فیضیاب ہونا چاہتے ہیں تو رمضان کے تقدس کو برقرار رکھتے ہوئے اسی طرح چلیں اور نبی کی سیرت کو اپنائیں, نبی کی زندگی کو میں دیکھیں کہ آپ نے چند کھجوریں یعنی ایک کھجور سے 3 آدمی افطار کیا کرتے تھے. یہ بھی ہوتا رہا کیونکہ وہ گلوکوز کی کیفیت تھوڑا تھوڑا چوس لیا, تھوڑی دیر کھا لی اور 3 افراد نے افطار کر لیا. نمک سے بھی افطار ہوتا تھا. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ رمضان آپ کو اپنے پیٹ کا شکم کا غلام نہیں, دوسرے کے پیٹ میں جھانک کر دیکھو, دوسروں کا خیال کرو, دوسروں کو کھلاؤ, اور جس قدر آپ کی یہاں پر فیاضی ہوگی, جتنا رمضان میں آپ فیاض بنتے ہیں, صدقہ خیرات زکوٰۃ دیتے ہیں, جسم کی زکوٰۃ بھی ہے. یہ بیماریاں جسم کی زکوٰۃ. آپ کے پاس میں بتاتا ہوں اسٹیم سیلس کیا ہے. یہ وقت ہے تو میں تو تھوڑا سا آپ کو رمضان جو ہے وہ آپ کو بون میرو بون میرو پر کام کرتا ہے, یعنی ہڈیوں کا گودا جو ہے وہ پورا سال کام نہیں. اسٹیم سیلز آپ کے باڈی کے جو آپ کو جوان رکھتے ہیں, آپ کو ایکٹیویٹ رکھتے ہیں, آپ کے اندر ریزسٹنس پاور بڑھاتے ہیں, قوت مدافعت بڑھاتے ہیں, آپ کے اندر جو نمبر آزما ہوتے ہیں نیمرا سے چیزیں, اس کو نام ہے اسٹیم سیلز. اور وہ اسٹیم سیلز ہڈیوں کے گودے میں ہوتا ہے اور بیلی پہ ہوتا ہے, پیٹ کی جہاں فیٹی فیٹس ہوتے ہیں. یہ اس وقت حرکت میں آ جاتا ہے, ایکٹیویٹ ہوتے ہیں. رمضان میں یہ جب نکلتے ہیں تو پھر اندر سے پوری جسم کو اینٹی بیکٹیریل کر دیتے ہیں, اینٹی وائرس کر دیتے ہیں, ریکنڈیشن کر دیتے ہیں پوری باڈی سے. آپ پورے سال میں جو آپ کے اندر آپ کی ڈپازٹ ہوئی ہوئی ہیں مختلف بیماریاں باڈی سے, وہ اس 1 مہینے میں وہ باڈی سے بیماریاں باہر نکل جاتی ہیں اور باڈی ریکنڈیشن ہو کر, سمجھے نا, آپ کو جوانی کی طرف لے, آپ کو بڑھاپے کی جو ہے جو رفتار ہے وہ کم کر دیتی ہے. اور مختلف بہت ساری ایسی امراض ہیں جو اندر پل رہے ہوتے ہیں, اس سے آپ کو نجات ملتی ہے. یہ تو ہے رمضان کی وہ فضیلتیں جو انسانی جسم اور جان پر رمضان کی روزوں رکھنے سے, روزوں کی برکت سے. پھر آپ یہ ہے کہ نماز ایک ساتھ عبادت کے ساتھ ساتھ ورزش بھی, ہاں ایکسرسائز بھی ہے جی, اور لمبے سجدے کرنے کو آپ حکم ہے کہ سجدے لمبے, اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ بلڈ سرکل جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو بلڈ سرکولیشن اور پورے جسم کی بلڈ جو ہے اس دوران خون دماغ کی طرف آتا ہے اور اس سے آپ کی میموری بہتر ہونا شروع ہوتی ہے, دماغی صلاحیتیں بہت اچھی ہونا شروع ہوتی ہیں, سوچ اور اس کے ساتھ ساتھ آدمی کے اندر تحمل مزاجی پیدا ہونا شروع ہوتی ہے. پھر یہی چہرے پر جب آپ کے بڑے سجدے سے یعنی لمبے سجدے کرنے سے چہرے پہ بھی رونق آنا شروع ہوتی ہے, چہرے پہ سرخی آتی ہے, چہرہ آپ کا گرو کرنا شروع کر دیتا ہے. جو لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھی آپ کے چہرے پہ نور بہت ہے, میں کہتا ہوں لمبے سجدے کیا بالکل بہت اچھی آپ کی نماز کے حوالے سے, ایکسرسائز کے حوالے سے آپ نے بات کی, اس کے ساتھ بہت اچھی بات ہے آپ کی. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ایک بڑے مایہ ناز بیٹسمین محمد یوسف, جو کبھی یوسف یوانا ہوا کرتے تھے, جب وہ ریٹائرڈ ہوئے تو ان کی کمر کی بڑی تکلیف کی وجہ سے جو ہے وہ ریٹائرڈ ہوئے, تو انہوں نے اسلام قبول کیا. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ریٹائرمنٹ کے ٹائم آ گیا تو وہ ریٹائر ہو گئے. انہوں نے جب نماز شروع کی
जब 5 वक्त नमाज शुरू की तो एक इंटरव्यू में लोगों से बात हुई तो उनसे पूछा गया कि आप आपकी कमर की तकलीफ कैसी है, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह का बड़ा करम है, मैं 5 मरतबा अल्लाह के हुजूर पेश होता हूँ, एक्सरसाइज होती है, मेरी कमर की तकलीफ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो ये बड़ी एक अलामत है ये नमाज की। और ये शजरकारी साहब, अब हम शजरकारी की तरफ थोड़ा सा आ जाते हैं। पाकिस्तान में आप क्या समझते हैं कि ये जो दरख्त वगैरह लगाते हैं ये तो अच्छी चीज़ है, जो काटते हैं वो कितनी अच्छी चीज़ है? देखिए, इसके बारे में सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा कब्रिस्तान से गुजर हुआ आपका, तो आप एक कब्र पर रुक गए, साहबा कराम भी आपके साथ थे, आप एक कब्र पर रुक गए और रुक कर उन्होंने क्या किया कि एक शजर पहले से मौजूद था, उसकी एक टहनी तोड़ी और उसके 2 टुकड़े करके उसको कब्र पर लगा दिया। तो तमाम साहबा ने सवाल किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अमल से क्या होगा? तो आपने फरमाया कि जब तक ये टहनियाँ सरसब्ज रहेंगी, ये ग्रीन रहेंगी, अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान करेंगी, और जब तक ये अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान करती रहेंगी तो ये इस कब्र पर कभी भी अजाब नाजिल नहीं हो सकता, उस वक्त तक जब तक ये ग्रीन है, तो कब्र पर अजाब नाजिल नहीं हो सकता। अब एक सवाल ये आता है कि जब हम कहते हैं किसी को कि अगर कब्रिस्तान जाते हैं और कब्रिस्तान में जाकर एक दरख्त लगाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उस कब्र के अंदर साहिब कब्र पर अजाब नाजिल हो, ये ज़रूरी नहीं है। अगर उस कब्र के अंदर साहिब कब्र जो है वो नेक है, सालिन है, तो अल्लाह पाक उनके दर्जात को और बुलंद कर देगा, तो उनके दर्जात को और बुलंद कर देगा। तो जब हमें ये कहा गया, अब आप मैं काटने वाली बात पर भी आता हूँ ताकि लोगों को ये मैसेज करने हो जाए कि काटने से होता क्या है, तो मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता वही लाऊंगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला, आप ज़मीन में बैठे हुए पौधा लगा रहे थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म जब वहाँ तशरीफ लाए तो आपने कहा कि हुरैरा क्या कर रहे हैं? तो आपने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं एक पौधा लगा रहा हूँ। तो आपने कहा कि मैं आपको एक ऐसा पौधा बताऊँ कि जिसके लगाते ही उसकी आबियारी भी ना करनी पड़े, उसकी आबियारी भी ना करनी पड़े और वो दरख्त तनावर दरख्त भी बन जाए। क्या मैं आपको एक ऐसा पौधा बताऊँ? तो आप हाथ झाड़ के मट्टी से खड़े होते। आपने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर बताइए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू हुरैरा, जब हम एक दफ़ा सुभान अल्लाह, एक दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह और एक दफ़ा अल्लाह अकबर कहते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे नाम का एक पौधा जन्नत में लगा देता है। तो ये सुन्नत किसकी है? शजर लगाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फिर साहबाइन की, फिर तबे ताबाइन की, ये सुन्नत दर सुन्नत हमारे आबा व अजदाद की कितनी सुन्नत है। तो जब हम एक पौधा लगाते हैं, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमा रहा है कि ये जिंदा है, सांस ले रहा है, तो जब आप उसको काटते हो तो आपके नाम पर एक कत्ल लिखा जाता है। आपके नामा इमाल में आपके किरामन कातिबीन फरिश्ते आपके नाम पर एक कत्ल लिखते हैं जब आप काटते हो, बिला शरई उज़्र के। अगर आप किसी भी पौधे को काटोगे तो आप उसके कातिल कहलाओगे। यही हदीसें सब लोग बयान करते हैं कि पौधा लगाना सुन्नत है, पौधा लगाना सदका जारिया है, पौधा लगाना इंसानियत की खिदमत है, लेकिन कोई अपनी सोशल मीडिया वॉल पर ये नहीं लिखता, कोई चैनल ये नहीं दिखाता कि पौधे को काटना कत्ल है, कत्ल है, क्योंकि जिंदा चीज़ है, सांस ले रही है, अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है। तो जब आप उसको काटोगे तो क्या है? आपके नाम इमाल में कत्ल लिखा जाता है, ये कोई नहीं बताता। दूसरी बात, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, राय चैनल के तवज्जुह से, इतने प्यारे होस्ट हमारे सरफराज भाई बैठे हैं, इनके तवज्जुह से ज़ैनब हमारी बहुत प्यारी होस्ट बैठी हैं, इनके तवज्जुह से बाबा फरीद कलीमी, इतनी बावकार शख्सियत, और हमारे प्रोफेसर साहब, हकीम साहब, डॉक्टर साहब आजम मौजूद है। तो मैं इन सबके एक सवाल का जवाब आज मैं व्यूवर से करता हूँ। जो भी लोग व्यूवर की नशियात देखेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो मैं उनसे इस सवाल का जवाब जरूर चाहूँगा कि जब भी कहीं हम कराची में, बिलखसूस कराची की बात कर लेते हैं, कराची में जब हम कहीं जाते हैं और शजरकारी करने का कहते हैं कि यहाँ पौधे लगाएं, तो आगे से एक जवाब आता है कि हमारे पास तो पीने का पानी नहीं है, तुम्हारे पौधों को पानी कहाँ से डालें? एक सवाल आता है। कराची में पीने का पानी नहीं है, पानी खरीदते हैं, ये हमारा अलमिया है, ये हमारा अलमिया है। अफसोसनाक बात है कि हम लोग पानी पीने के लिए भी खरीदना पड़ता है, जबकि ये नेमत है, कुदरत की नेमत है, खुदाबंदी है, जो फ्री में मुयसर होता है, जो गवर्नमेंट का, बिल्कुल गवर्नमेंट का हुआ है कि वो उसको मुयसर करना चाहिए, लेकिन हम वो भी खरीद कर पी रहे हैं, ये हमारा एक अलमिया है। लेकिन एक सवाल जो व्यूअर से वो ये है कि जब आप हमसे आगे से ये कहते हैं कि हमारे पास पीने का पानी नहीं है, पौधों को पानी कहाँ से डालें, तो फिर एक सवाल ये आता है कि क्या आज तक कोई एक वाक्य, व्यूअर से सवाल है, क्या आज तक कोई एक वाक्य आप ऐसा कोट कर सकते हैं प्रिंट मीडिया का या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कि आपके घर में कोई एक बंदा भी बगैर पानी के प्यास से मर गया? एक वाक्य भी नहीं, एक वाक्य भी नहीं है, एक वाक्य की ऐसा खबर शायद नहीं आज तक कि आपके घर का कोई एक बंदा बगैर पानी पिए बगैर मर गया और प्यास से, नहीं। लेकिन मैं 1000 वाक्य आपको दिखा सकता हूँ, सोशल मीडिया पे भी और प्रिंट मीडिया पे भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी दिखा सकता हूँ। ऑक्सीजन नहीं मिली, बंदा मर गया, ऑक्सीजन नहीं मिली, बंदा मर गया, अस्पताल लेकर गए, वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से मौत वापा हुई। ऑक्सीजन की वजह से बंदे मरते हैं, पानी की वजह से कोई बंदा नहीं मरता। तो जब आप अपने लिए, अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए पानी खरीद कर पीते हैं, तो आपको पौधों को भी अपनी फैमिली समझना पड़ेगा, पौधों को भी अपने बच्चों की तरह पालना पड़ेगा। जब होगा हमारा पाकिस्तान, सरसब्ज पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान जब बनेगा, सरसब्ज पाकिस्तान और सरसब्ज कराची
بھی خوشحال کراچی بھی اسی وقت بنے گا جب آپ اس کو اپنے بچوں کی طرح پانی دیں گے. اس کے لیے بہت آسان سا طریقہ ہے. آپ کے پاس جتنے بھی مساجد ہیں, مسجد کے ساتھ جتنے بھی متصل گراؤنڈ ہے, پارک ہے جو عیدگاہ ہوتی ہے نماز پڑھتے ہیں, تو آپ اپنے مسجد کا پانی کو یوٹیلائز کریں, اپنے مسجد کے پانی کو ویسٹ نہ کریں. یہ لوگ سیوریج میں چلا جاتا ہے, گٹروں میں جا کے ضائع ہو جاتا ہے. آپ کا پانی صاف ہے, پاک پانی ہے, صاف پانی ہے, اس میں کچھ ملاوٹ نہیں ہے. آپ نے وضو کیا, اس وضو کے پانی کو آپ سیو کریں, سیو کر کے اس پانی سے آپ شجر کاری کریں, انشاءاللہ تعالیٰ ضرور شجر کاری کامیاب ہوگی. پانی کا مسئلہ حل ہوگا. آپ جب اسکول جاتے ہوئے اپنے بچے کو ایک بوتل دیتے ہیں, کتنا خیال ہے اپنے بچے کا نا, ایک بوتل دیتے ہیں کہ بیٹا یہ بوتل رکھ لو, پانی یوز کرنا ہے اسکول میں جا کے, تو ہمیں بچے کا خیال ہے. اسی طرح ہم پودے کا خیال کرتے ہوئے اپنے بچے کو یہ اویئرنیس دیں, اپنے بچے کو یہ آگاہی دیں کہ بیٹا جب اس اسکول کی بوتل میں سے پانی بچ جائے تو وہ بچا ہوا پانی کہیں زمین میں مت پھینکنا, کسی کیاری میں کسی پودے میں ڈال دینا. وہ بچا ہوا پانی ہم پودے میں ڈال سکتے ہیں. اپنے گھر میں ہم جو پانی پیتے ہیں اور پانی پی کے ویسٹ کر دیتے ہیں, وہ ویسٹ ہو جاتا ہے. وہ چاہیں تو ہم اپنے گھر کے پلانٹس میں, اپنے گھر کے پودے میں اپنا بچا ہوا پانی یوز کر سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم آپ کے پروگرام کے توسط سے اگر ہم بتائیں گے تو بہترین بات یہ ہے کہ ہم ہزاروں روپیہ خرچ کر کے, آج کراچی کی بات کرتے ہیں, کراچی کے لوگ ہزاروں روپیہ خرچ کر کے ایبٹ آباد کیا دیکھنے جاتے ہیں؟ سوال ہے, ایبٹ آباد کیا دیکھنے جاتے ہیں؟ سرسبز پہاڑ. کیا دیکھنے آتے ہیں؟ سرسبز پہاڑ. ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں سرسبز پہاڑ دیکھنے کے لیے. آغا نارائن میں جا کے کیا دیکھتے ہیں؟ صرف سرسبز پہاڑ. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے پاس بھی کٹی پہاڑی موجود ہے. ثم الحمدللہ ہمارے پاس کٹی پہاڑی موجود ہے, ہمارے پاس منگو پیٹ کی پہاڑیاں موجود ہیں, ہمارے پاس طرح طرح پہاڑیوں کا گنجو ٹکر پہاڑیوں کا سلسلہ موجود ہے. لیکن ہماری کٹی پہاڑی, ہماری پہاڑیاں کوئی دیکھنے نہیں آتا. کیوں نہیں آتا وجہ؟ بٹ وائی؟ صرف اونلی ون کوسچن, ایک ہی سوال ہے کہ صرف سرسبز نہیں, پہاڑ بھی نظر نہیں آئیں گے, وہ بھی کاٹنا شروع, وہ بھی کاٹنا. کنکریٹ کا شہر, مطلب کراچی لوگ کنکریٹ کا شہر بنتا ہے. پہاڑی کہتی ہے نا, کٹی پہاڑی کا مطلب کیا ہے کہ تو کاٹ کے کٹی پہاڑی بنایا. اگر آپ اس کو سرسبز کریں, اگر آپ اس کو سرسبز و شاداب کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ لوگ ہمارے پاس بھی ٹورسٹ جو ہے وہ یہاں پر بھی سیر و تفریح کے لیے سیاح جو ہے وہ یہاں پر بھی پہاڑی سلسلہ دیکھنے آئیں گے. صرف ہمیں شجر کاری کرنی پڑے گی. سوال پھر وہی ہے پورے پاکستان کے لیے, ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ پاکستان میں ہمارا پرچم, الحمدللہ پاکستان کا فلیگ, پاکستان کا پرچم سرسبز ہے, تو کیا جتنا رنگ ہمارے جھنڈے میں سبز ہے, کیا ہمارا ملک اتنا سرسبز ہے؟ اور اگر نہیں تو کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جتنا ہمارا پرچم سبز ہے, ہمارے ملک میں جتنا ہمارا پرچم سبز ہے, ہمارا ملک اتنا سرسبز کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہر انسان اپنے حصے کا, صرف اپنے حصے کا ایک پودا لگا لے, اپنے مرحومین, اپنے والد والدہ جو مر گئے, جو دادا دادی مر گئے, ان کے نام کا ایک پودا لگا دے اور ان کو ڈیلیگیٹ کر دے کہ یا اللہ رب العزت جو یہ تسبیح پڑھیں گے, میں اپنے دادا دادی کو, ماموں ممانی کو, نانا نانی کو ڈیلیگیٹ کر رہا ہوں کہ یا اللہ اس کے ثواب ان کو پہنچے, تو ان کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا اور ہمارا کراچی سرسبز ہے. ماشاءاللہ صدیقی صاحب نے ایک اور تھوڑا چھوٹی سی بات کے اندر کتنی سارے جوابات جو ہیں انہوں نے دے دیے. لیکن فتح مکہ جب ہوا جی, اس وقت اعلانات ہوئے جو اپنی عبادت گاہوں میں پناہ لیں گے انہیں چھوڑ دیا جائے گا, خود کو معاف کر دیا جائے گا. پھر بچوں, بوڑھوں اور عورتوں کو قتل نہ کیا جائے. تیسرا تھا کھیتیاں, کھلیان اور درختوں کو نہ کاٹنا. جنگیں میں بھی نہ, یہ جنگ کے قوانین میں شامل ہے. اور جنگی قوانین جو ہے جو مرتب کیے رسالہ تبارک نے, وہ دنیا کا سب سے بہترین نظام سسٹم تھا کہ جس سے آپ کی جنگ ہے اس سے لڑے, نہ کہ گھر تباہ ہو. جیسے ابھی فلسطین میں یہی ہوا کہ گھر تباہ کر دیے, گائیں تباہ کر دی, ہسپتال تباہ کر دیے, سب چیزیں انہوں نے جنگی قوانین کو بلیا میٹ کر کے انسانی حقوق کی جو ہے وہ دھجیاں اڑا دی. تو یہ بات رکھ مگر, لیکن لبنان کا پورا علاقہ یا فلسطین کا علاقہ بڑا زرخیز علاقہ, تو وہاں بھی کوئی تباہی ہوئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ قوانین جو ہے اگر اس کی پاسداری کی جائے تو یہ درخت بھی قائم رہے اور ہمارے صحت اور آکسیجن جو ہے ہم پراپر ہمارے بچوں کو ملے. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ موسم کی تغیرات جو ہے اس وقت کس قدر شدید گرمی اور ہیٹ ویو چلتی ہے, اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے جنگلات کا صفائی کر دیا, درخت کاٹ دیا, جنگلات کو کاٹ کے یہ ابھی علی عمر صدیقی صاحب نے بڑے اچھے جوابات دیے. اور ایک سب سے اہم ترین بات جو انہوں نے کی وہ بڑی دل پہ لگی ہے زینب, انہوں نے یہ کہا کہ مسجد کا پانی وہ ضائع ہو رہا ہے. کیوں ضائع ہو رہا ہے بھائی, کیوں ضائع کیا جا رہا ہے؟ اگر وہی پانی آپ
पौधों में डालें, उनको शजरकारी में इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि हम लोग अक्सर देखते हैं जब हम जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, वजू करते हैं, तो वाकई वो पानी ज़ाया हो रहा है। तो वो ज़ाया होने से ये बच सकता है अगर हम हर अपने घर के आगे और महल्ले में, गली कोनों में, दुनिया जितने जहाँ करीब करीब की जगह है, जैसे पार्क हो जाते हैं, अगर हम खुद थोड़ी सी इस पर वर्किंग कर लें, मेहनत कर लें, तो वो पानी भी ज़ाया ना हो, आपके पास हरियाली भी हो जाए और ये गर्मी का जो एक तवाज़ुन है वो भी तकरीबन उसका फिर ऐसे प्लांट्स हैं मौजूद जो आपकी कमरों में जो है वो बाकायदा लगते हैं, और बाकायदा वो भी जो है वो आपको जरूरत नहीं उसकी पड़ती। आप जिनके घरों में नहीं है मिट्टी या ऐसा नहीं है सहन जहाँ पर पौधा लगा सकते, तो अपने घर की उसमें क्यारियाँ सबसे मेन मसला ये आता है कि हम अगर 10-15 साल पीछे जाए, 15 साल पीछे चले जाए, 20 साल पीछे चले जाए, आप 50 फुट जमीन खोदते थे, पानी निकला। बाद तो ऐसा भी हम लोगों ने देखा है घर की बुनियाद खोद रहे पानी। आज हमारा अलमिया क्या है, आप 150 फुट, 100 फुट, 200 फुट पानी नहीं है, 300 फुट पानी नहीं है। तो ये क्या है, ये क्या है कि शजरकारी हमने की नहीं, प्लांट्स हमने लगाए नहीं। ये क्या है, पंपिंग स्टेशन है। नीम का दरख्त क्या है, नीम का दरख्त पंपिंग स्टेशन है। जिस तरीके से वो जड़ें फैलाता है, वो पानी को खींच के ऊपर लाता है। शजरकारी हमने नहीं की, ये किसकी गलती है और ये इसमें किसका कसूर है, और गवर्नमेंट की इसमें क्या खिदमत होनी चाहिए और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, शॉर्ट ब्रेक से वापस आएंगे, फिर हम अली मोहम्मद सिद्दीकी से ज़रूर ये पूछेंगे कि हुकूमत के लिए आपका क्या पैगाम है, कि हुकूमत का क्या किरदार होना चाहिए। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद स्टॉप। पहले सब जर्म्स सैनिटाइज। मामा, पर इनका क्या? हाँ मैडम, इन दागों में छुपे हुए जर्म्स का क्या करोगी? वो सब ब्राइट कर देगा। ब्राइट? नया एंटीबैक्टीरियल ब्राइट, अब दाग हो या जर्म्स, ब्राइट सब ब्राइट कर देगा। बिल्कुल, नए एंटीबैक्टीरियल ब्राइट का जर्मीशील्ड फॉर्मूला दाग को फाइट करे, जर्म्स को सैनिटाइज करे पूरे 99.9%। देखा, दाग को लेफ्ट और जर्म्स को राइट कर दिया। ये तो ब्राइटनेस अब राइट कर दिया। ब्राइट से ब्राइट कर देगा। नया ब्राइट एंटीबैक्टीरियल। प्रोग्राम में मतलब खुशामदीद। ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी और अली मोहम्मद सिद्दीकी साहब ने बड़ी अच्छी बातें की शजर हमारे, क्योंकि खासतौर पर शजर के हवाले से जो है उनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं इसमें। अस्करी साहब हमारे जो माशाल्लाह डॉक्टर भी हैं, हकीम भी हैं, और अस्करी साहब तो हैं का। अच्छा, हकीम और डॉक्टर ये मेरे हिसाब से ये हम सबके हिसाब से तकरीबन दो अलग अलग शोबाजात के लगते हैं, क्योंकि हिकमत के हवाले से जो है वो आप जड़ी बूटियों से इसका इलाज कर रहे हैं लोगों का, और अगर हम डॉक्टरीज पर आ जाते हैं तो इसमें जो मेडिसिन जो चल रहा है वो बड़ा हार्ड होता है, वो गर्म भी बहुत ज़्यादा होती हैं जो दवाइयाँ होती हैं। तो इस दोनों में क्या आप फ़र्क महसूस करते हैं कि हिकमत के हवाले से अगर आप मेडिसिन किसी को दें वो ज़्यादा ईजी है, आसानी से मरीज के लिए काम हो जाता है, या एलोपैथी? देखिए, वो अवसर और मुक़द्दस पेशा है जिसकी इबादत रूहानियत, खिदमत, मुस्लिम की सेहत और बका का पेशा है। इल्म जहाँ होता है वहाँ इत्तेहाद और इश्तराक पैदा होता है, हिफ्ज़ व उमर और सही होना पैदा होता है। तमाम शोबाए एलोपैथिक, होम्योपैथिक, एक्यूपंक्चर, हिकमत, तिब्बी, ये इंसानों की सेहत और बका के लिए काम करते हैं। हम ये समझते हैं कि एमरजेंसी में एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो है वो फर्ज तौर पर उस इंतहाई हालात से मरीज को बाहर निकाल लेता है, एमरजेंसी से इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसको अगर हम तरतीब दे दें
کہ ہربل سائنسز جو ہے وہ اس وقت دنیا بھر میں اس وقت ریکگنائز بھی ہے اور لوگ اس پر فیتھ کرتے ہیں, ٹرسٹ کرتے ہیں کہ اس کے آفٹر افیکٹس نہیں ہیں. لیکن ہم نے آج بھی کبھی ایسا ایمرجنسی ہوتی ہے تو ہم ہاسپٹل آتے ہیں مریض کو لے کر, کیوں ہمیں پتہ فوری طور پہ ایمرجنسی ٹریٹمنٹ مل جائے گا, مریض کھڑا ہوگا. لیکن ان کا لانگ رن لمبے عرصے کے لیے اگر ہم یہ دوائیں استعمال کریں تو پھر اس کے آفٹر افیکٹس شروع ہوتے ہیں. جی ہاں, اس کے لیے کیا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہربل ادویات شروع کر دیں تاکہ باڈی جو ہے اس کے سائڈ افیکٹ سے بات ہونا شروع ہو جائے. اور وہ پہلے ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب آپ ایلوپیتھک دوائیں چھوڑ دیتے ہیں اور ہربل کی طرف آ جاتے ہیں اور پھر حکمت کی دوائیاں اسے مکمل فٹ کرتے ہیں. ایلوپیتھک دوائیں جو ہیں وہ مرض کو دبا دیتی ہیں اور جبکہ دوسرے طریقہ علاج جو ہے حکمت کا وہ مریض مرض جو ہے وہ نکال ختم کرتا ہے, باڈی سے نکال کے بات نہیں کرتا ہے. ایک یہ فرق ہے. پھر دوسرا ایکوپنچر اور ہومیوپیتھک بھی میڈیکل سائنس ہے, وہاں بھی لوگ ٹھیک ہو کر جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ شفا کا منبع تو اللہ ہے, سمجھے نا. لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں, لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں, حکیموں کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹروں اور ہومیوپیتھک کے پاس جاتے ہیں. سمجھے نا, نیت اور انحصار ہے یقین اور ایمان پر ہے کہ آپ کا بھروسہ, آپ کا یقین اور ایمان کس پر ہے, جس پر آپ کا ہو جاتا ہے. دیکھیے خاک جو ہے اٹھا کے اس کے ہاتھ میں رکھ دی جاتی ہے, جو اٹھائی شفا یابی ہے, اس نے اسی یقین کے ساتھ اس لڑکی کو شفا یاب ہو گیا, اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا, اس میں خوب جھاڑ کر دیا, وہ بھی شفا یابی کا ایک راستہ ہے. مگر جو سارے تمام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ کچھ صحابی آئے کہنے کہ یا رسول اللہ آپ حارث بن قریظہ کے پاس کیوں بھیجتے ہیں یا مریضوں کو, اپنے مسلم کو, تو حارث بن قریظہ تو یہودی ہے, آپ اس کے پاس علاج کے لیے کیوں بھیجتے ہیں؟ تو ہاں, تو آپ نے فرمایا بات یہ ہے, اور کہتے ہیں آپ یا رسول اللہ آپ تو لب لگا دیں, پھونک مار دیں ہاتھ, تو شفا یاب ہو جائے. آپ نے فرمایا کہ نمبر 1 اگر یہ میں یہی کام کرتا ہوگا تو لوگ جھاڑ پونچھ اور تعویذ گروں کی طرف رہیں گے, میڈیکل سائنس کی طرف نہیں, ریسرچ نہیں کریں گے. اللہ نے تمام جڑی بوٹیاں, درخت اور پتے پھول جو ہے یہ انسانوں کی صحت کے لیے, علاج کے لیے پیدا کیا. تو بات یہ ہے کہ جب وہ اور پھر یہودی کے پاس کیوں بھیجا, دیکھو شفا اور علاج, یہ بات سوچو کہ مسلمان کے پاس جا سکتے ہیں. یہ کہ آپ کے علاج کے لیے آپ کسی ہندو کے پاس بھی جا سکتے ہو, کسی سکھ کے پاس بھی جا سکتے ہو, کسی یہودی کے پاس بھی جا سکتے ہو. علاج کسی ایک اس نہیں ہے کہ آپ یہ آپ کا لاجک تھا جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ شفا کا منبع جو ہے وہ انسان کی وہ چیز ہے جسے ایک حکیم ہو, ڈاکٹر ہو, ہو, اگر وہ کام کر رہا ہے یقین اور ایمان کی کیفیت میں تو وہ شفا دیتا ہے. اچھا حکیم صاحب ایک سوال ہے آپ سے, جیسے ابھی رمضان ہے تو فیٹی لیور کا مسئلہ رہتا ہے زیادہ تر لوگوں کو, اس کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی نسخہ ہے تو وہ بتا دیں. جی ہاں, جی ہاں, رمضان میں تو وہ تو اگر پورے روزے پورے طریقے سے پورے اہتمام کے ساتھ جیسے روزے کی تقدس سے اس کو برقرار رکھتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس کے جسم سے ایکسٹرا فیٹس نکل جاتی ہیں. عموماً فیٹی لیور ان کو لوگوں کو ہوتا ہے کہ وہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو اگر اپنے پیر نظر نہیں آتے اور پیٹ اتنا بڑا ہے تو 100% فیٹی لیور. آپ کبھی احساس ہو, کبھی چیک کر لو اپنے فیٹ کہ لیور میرا نارمل ہے کہ نہیں ہے. آپ کھڑے ہو کر پیروں کی طرف دیکھیے, پیٹ کو اندر کیے بغیر اگر پیر نظر آ رہے تو اس کا ہم فیٹی لیور نہیں. اور دوسرا یہ کہ فیٹی لیور کے حوالے سے لازم میں بہت بہتر آپ کو نسخہ لکھوا دیتا ہوں, نوٹ کر دیجیے گا. یہ سر نسخہ کون سی بیماری کے لیے لکھا ہے؟ یہ میں فیٹی لیور جگر کا بڑھ جانا. اچھا, جگر کا بڑھ جانا, یہ تو لوگ متاثر ہے, اس وقت بڑا لوگ اس سے متاثر ہیں جگر کے معاملے میں, کیونکہ جگر ہے صحیح ہے تو آپ پورا جسم آپ کو صحیح ہے, مومنٹ کر رہا ہے. جگر تو آپ کے خون باڈی کو پورے ہر چیز تمام جتنے بھی انزائمز ہیں, وٹامنز ہیں, پروٹینز ہیں, یہ پوری باڈی میں پہنچاتا ہے, خون پیدا کرتا ہے. اور عموماً یہ جوائنٹس یرقان جو ہو جاتا ہے وہ جگر کی خرابی کی وجہ سے ہو جاتا ہے. جو لوگ بہت زیادہ انڈے اور پراٹھے اور یہ کھاتے ہیں انہیں جوائنٹس بھی ہو جاتا ہے. تو اسی لیے کہا گیا کہ ایک دال میں رہ کر غذا کا استعمال کیا جائے.
ये नोट कीजिएगा नाज़रीन। मिश्रा की है, जिगर चलनी है, दिल घबरा रहा है, और जिगर मुरादाबादी एक शायर भी गुजरे मास्टर। हाँ, बिल्कुल। तो इसका मतलब जिस्म का इंतहाई अहम हिस्सा बेहतरीन हिस्सा है जी। अगर ये नुस्खा ये फरमाइए हमारे ये नाज़रीन नुस्खा इस्तेमाल कर सकते जी हैं। जी ये तो सबसे पहले मैं तो आपको एक और भी नुस्खा देता हूँ। ये नुस्खा है 1 चम्मच अमिता बूटी, 1 चम्मच सना मक्खी, चाय का चम्मच लीजिए, और 1 चम्मच अजवाइन देसी, और 5 काली मिर्च। नाज़रीन ये इनको थोड़ा सा दरदरा कूट लें, और कूटने के बाद 1 गिलास पानी में डालकर अच्छी तरह डाल कर इसमें 1 नींबू निचोड़ लीजिए, और सुबह निहार और शाम को खाली पेट पिए, यानी सुबह सहरी से कबल और अफ्तार करते ही आप ये अगर इसका पानी पी लेते हैं तो ये आपके फैटी लीवर आपकी बॉडी से ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, और ये गुर्दों की भी आपको प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। और वो आप बहुत से मरीज अगर गुर्दों के मरीज इसको इस्तेमाल करें तो वो डायलिसिस से भी बच सकते हैं। दिल्ली कितनी दफ़ा इस्तेमाल किया? दिन में 2 दफ़ा 2 मरतबा हो सकते हैं। 2 दफ़ा बताया। अच्छा सना मक्खी से खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले? खाली पेट खाली पेट? जी हाँ। अच्छा। अब सहरी से कबल आधा घंटा 45 मिनट पहले इस्तेमाल करें। अच्छा। और इसी तरह अफ्तार करें। अच्छा बहुत हेल्थ जिनकी हो जाती है, मोटे हो जाते हैं। मेरी एक फ्रेंड थी, उसने सना मक्खी के पत्ते जो होते हैं 2 स्पून 1 गिलास पानी में डालकर, नहीं 2 गिलास पानी में डालकर उसे पकाती थी। जब हाफ गिलास रहता था ना वो रेगुलर पीती थी। वो इतनी हैवी थी और वो स्लिम हो गई। तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं था क्या उसका? तो ये देखें इस ये होती है कि साइड इफेक्ट तो एक्सेस इज एवरीथिंग्स बैड, हर चीज़ की ज्यादती आपको नुकसान देती है। अगर उसकी मिकदार उन्होंने बराबर रखी है और इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे उससे उनका तो ये टॉक्सिन्स निकलते हैं, मोशन आना शुरू होते हैं, दिन में 2-3 दफ़ा मोशन हो जाते हैं, उससे बॉडी में जो है चर्बी घुल के निकलती है। और ये सना मक्खी जो है ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी यानी बताई हुई वो जड़ी बूटियाँ हैं जिसमें आपने बताया कि इसमें शफा है, इसमें हयात है, इसमें बका इंसानी है। और यही सना मक्खी जो है और सौंफ इसमें डाल दी जाए और थोड़ा सा अमलतास सौंफ मिक्स कर दिया जाए गले के लिए, ये हार्मोनल सिस्टम के लिए बेहतरीन है और इसे मोटापे को भी ख़त्म करती है, निज़ाम हज़म भी बेहतर करेगी और रंग भी साफ करेगी। जी बिल्कुल। पाकिस्तानी हुकूमत को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं सरकारी के हवाले से, ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से क्या कहना चाह रहे हैं कि ये किस तरीके से जो है हमारे इस मुल्क का माहौल ठीक होगा और ये पाकिस्तान हमारा ग्रीन पाकिस्तान है? बहुत अच्छी बात पूछी आपने। पहले तो मैं टी वी के तवज्जुह से आपको नाज़रीन को एक पैगाम दे दूँ कि काम वो करें कि लोगों के दिल में उतर जाए। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए भी बात है, मतलब इन्होंने पूछा है तो मैंने दोनों बातों में एक ही बात का जवाब दूंगा, दोनों हुकूमत को भी और वेपर्स को भी। ठीक है, काम वो करें कि लोगों के दिल में उतर जाए, काम को हरगिज़ ना करें कि लोगों के दिल से उतर जाए। दिल में उतरना है, दिल से नहीं उतरना। दूसरी बात ये कि अपना कोई भी छोटी से छोटी नेकियां कोई भी काम करते हैं तो उसकी मकबूलियत की दुआ मांगे कि अल्लाह पाक जो है ना उसको कबूल फरमा ले। जब भी कोई नेकी करें कबूलियत की दुआ मांगे कि अल्लाह पाक कबूल फरमा ले, मकबूलियत के पीछे भागना छोड़ दें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर आपकी नेकी कबूल कर ली तो मकबूलियत तो आपके दरवाजे के आगे हाथ बांध के खड़ी है, फिर तो कोई नहीं रोक सकता आपको रहमत अमल से। तो पहले कबूल की दुआ करेंगे अल्लाह हमारी नेकियों को कबूल करवा ले। पाकिस्तान जो है गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट क्या करती है कि आपको अक्सर सुनते हैं कि हमने बिलियन दरख्त लगाए, लेकिन बिलियन दरख्त मिलते नहीं। अच्छा, हमने एक हदीस ये भी सुनी कि आप सबका इस तरह से देंगे, एक हाथ से दें और एक हाथ को पता ना लगे। तो हमारी गवर्नमेंट ऐसे दरख्त लगाती है बिल्कुल वैसे कि एक हाथ से देती है दूसरे को पता नहीं लगता। शेरियों को नहीं पता पड़ता दरख्त कहाँ लगे, वो दे देती है, 1 करोड़ दे देती है, 1 लाख दे देती है, पता नहीं चलता। करें कि दूसरे आपको पता नहीं चलता। आजकल एनजीओ वाले अगर जानवर को भी रोटी डाल रहे हैं ना उसकी वीडियो बना रहे हैं और लिख रहे हैं कि बेजुबानों की जो है ना मदद किया करें। तो आपकी बात को फॉलो करते हुए पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी दरख्त ऐसी लगाई है कि किसी को नजर ना आए और हम लगा भी दें, तो वो बिलियन लगाते हैं। अच्छा, दूसरी बात एक और बात पाकिस्तानी हुकूमत एक और बात इससे आगे की बताते हैं आपको कि आपने पूछे वो ये है कि जब भी गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट लाती है तो वो सुबह अल्हम्दुलिल्लाह ये कह दें
कि अल्लाह अकबर के आप वो क्या करते हैं कि वो छेंच का पौधा लेकर आते हैं, वो छेंच का पौधा लगे लगाते हैं, वो ना सर्दी बर्दाश्त करेगा, ना गर्मी बर्दाश्त करेगा, ना धूप बर्दाश्त करेगा, छेंच का पौधा। अच्छा दूसरी बात ये कि ये तो शजर, लोगों को पता ही नहीं शजरकारी एक है। शजरकारी आप एक बीज लगाते हैं, उस बीज से एक पौधा निकलता है, वो अपनी जगह पे पावरफुल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, कुदरत ने उसको निकाला, वो स्ट्रॉन्ग है। ये जो शजरकारी गवर्नमेंट करती है, जो शजरकारी हम लोग भी करते हैं, ये ट्रांसफर शजरकारी है। क्या ये ट्रांसफर शजरकारी? हम लोग पौधा बना हुआ कहीं से निकाल के ले जाके लगाते हैं, गमले में बना हुआ पौधा, प्लास्टिक की थैली में बना हुआ पौधा, उसको ट्रांसफर करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। उसमें क्या होता है, कभी घर को हवा लग जाएगी, वो पता नहीं चलेगा, कभी वो मुरझा जाएगा, कभी वो पनप ही नहीं सकेगा, ठीक है। अच्छा दूसरा, जितनी उसको पानी की जरूरत है वो पानी नहीं मिलेगा, कहीं क्लोरोफिल नहीं मिलेगा, सनलाइट उसको प्रॉपर तौर पर नहीं मिल पाएगी। तो होता क्या है कि ये छेंच का पौधा लगा के फोटो सेशन करवाते हैं, फोटो सेशन के लिए फेसबुक का भी तो पेट बन जाता है, तो फोटो सेशन करवाते हैं कि वो छेंच का पौधा लगाते हैं फोटो सेशन के लिए। उसके बाद वो जो फोटो सेशन हो जाता है उसके बाद मुड़कर कोई देखता नहीं। आप मुझे ये बता दें कि अगर लियारी एक्सप्रेस वे या हैदराबाद तक, कराची से लेकर हैदराबाद तक सुपर हाईवे में पौधे लगाए जाए, तो आपको ये नहीं लगता कि वहाँ पर हेलीकॉप्टर कौन करेगा? हेलीकॉप्टर की जिम्मेदारी होगी, बाकायदा कोई प्रॉपर एक गाड़ी पानी की भेजनी पड़ेगी जो डाली। आप लियारी एक्सप्रेस वे में पौधे लगा दिया आपने, 1,000 पौधा एक वक्त में जाके लगा दिया, आप मिनिस्टर MP MN आ गए, फोटो सेशन हो गया, उसके बाद मुड़कर किसी ने देखा? नहीं देखा। आज वहाँ पौधे हैं नहीं है, बिल्कुल मुड़कर कोई भी नहीं करता। अब हम हमारे जो प्रोग्राम का जो है बहुत आखिरी खत्म होता है, क्योंकि शहरी का भी एहतमाम करना है। दो लफ्जों में आपसे मैं सरकार आपसे पूछना चाहता हूँ, फजीलत रमजान के 2 लफ्जों में जरा आप बताइएगा, फजीलत रमजान के लिए। फजीलत रमज़ान हो, नमाज हो, रोज़ा हो, उस पर नीयत पर डिपेंड करता है। तमाम मामला, ज़िंदगी के मामला नीयत पर डिपेंड करते हैं। तो हमने अगर कोई भी काम करना है, फजीलत रमज़ान से इस्तिफ़ादा करना है, तो हमारी नीयत ये होनी चाहिए कि अल्लाह की रज़ा में बने, और अल्लाह की रज़ा के लिए जो शरई हुक्म है, जो हुजूर की सुन्नत है, जो कुरान दावत दे रहा है, जो रोज़े की फजीलत बताई गई है, कैसे हासिल होगी, ऐन उस पर ऐनुल यकीन, हक़ुल यकीन, यकीन कामिल समझते हुए उस पर अगर अमल कर लेगा तो ये फजीलत रमज़ान की बरकतें उसे हासिल हो जाएंगी। अली मोहम्मद सिद्दीकी साहब, 2 लफ्ज़ों में मैं लफ्ज़ का एक पैगाम दे देता हूँ और 2 लफ्ज़ों में दे देता हूँ। उसमें ये कि हम एक स्कूल में गए और स्कूल में जाके एक बच्चे को पूछा कि दरख्त किस काम आते हैं, तो उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया आगे से कि दरख्त किस काम आते हैं कि हमारे अब्बू बकरा ईद पे गाय जाके दरख्त से बनते हैं। तो मतलब उसको पता ही नहीं था कि दरख्त क्या होता है और दरख्त किस काम आता है, उसको अवेयरनेस नहीं थी, आगाही नहीं थी। तो उसके लिए मैंने एक गज़ल लिखी, वो गज़ल मैं आखिरी सुना देता हूँ आपको, टाइम मुख्तसर का ख्याल करते हैं कि एक गज़ल हमने लिखी और वो खुद हमारी ये लिखी हुई गज़ल है और शजरकारी पर है, वो आपके तवज्जुह से जाएगी तो लोगों को पता पड़ेगा इंशाल्लाह। आओ अपने अजदाद की रिवायत को दोहराएं, आओ अपने अजदाद की रिवायत को दोहराएं। हमारे आबा अजदाद की रिवायत है, सुन्नत है, ठीक है। आओ अपने अजदाद की रिवायत को दोहराएं हम, आओ मिलकर अपने हिस्से का एक पौधा लगाएं हम, आओ अपने अजदाद की रिवायत को दोहराएं हम, आओ अपने हिस्से का मिलकर एक पौधा लगाएं हम। यार मेरे बच्चों पे धूप ना आने पाए, अच्छा यार मेरे बच्चों पे धूप ना आने पाए, आओ मिलकर एक बाग सजाएं हम, आओ मिलकर एक बाग सजाएं हम। और मैं रहूं ना रहूं, मैं रहूं या ना रहूं, मैं रहूं ना रहूं, ये आरज़ू है कि स्कूल में भी शजरकारी पर एक बाग पढ़ाएं। जब स्कूलों में एक बाग पढ़ाएंगे शजरकारी पर तो लोगों को, बच्चों को अवेयरनेस होगी। वो ये नहीं कहेंगे कि हमारे अब्बू दरख्त से गाय बांधते हैं, इसलिए या कोई भी हम में से ऐसा नहीं करेगा कि एक कार खरीदेगा, अल्लाह पाक आपको बाइक से कार देता है तो आप कार लाते हैं तो सबसे पहले क्यारी तोड़ते हैं कि कार पार्किंग की जगह नहीं होती, अपनी क्यारी तोड़ के कार खरीदेगा, ऐसा नहीं करेगा। 2 लफ्ज़ों में बहुत खूब। रमज़ान की फजीलतें बयान करते हुए तो सैरी हो जाएगी, ना सैरी भी हो जाएगी, रोज़ा भी हो जाएगा आगे। सही बात ये है कि ये सदका, ज़कात, खैरात, मदद का महीना है। एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे का हकूक़ को देखो। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका हमसा है। पहले कुरैश बाद दरवेश, पहले आप अपने रिश्तेदारों को देखिए, आपके रिश्तेदारों में कितना कौन हकदार है। फिर आप पड़ोस में जाइए, फिर आप अपने अहबाब अपने दोस्तों में देखिए और मोहल्लेदारों में देखिए।
इससे बेहतरीन आपको कोई नहीं रास्ता मिलेगा। लोग ढूंढते फिरते हैं, कहते हैं जी हमें तो ज़कात देने वाले कोई सही मानों में लोग नजर नहीं आते, तो हम अपने घर को छोड़ देते हैं, अपने रिश्तेदारों को छोड़ देते हैं और उनको वहाँ ढूंढते हैं जहाँ वो अफसत में नहीं होते। और देखिए, जब किसी नाहक आदमी को दिया जाएगा जिसका हक नहीं बनता, आपने हकदार का हक मान दिया। और इस वक्त हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें इस अफ्तार में लोगों को पेट का देखें किस तरह के उनको सैर होकर खाने को मौका मिलता है। पूरे रमजान में वो खाते हैं जो पूरा साल नहीं खाते। ऐसे भी गरीब लोग हैं जो पूरा साल फल नहीं खाते, लेकिन रमजान में वो बेचारे खाते हैं। छोटे छोटे बच्चे आपने देखे कि जो सिर्फ इतना कह रहे थे कि रमजान आ गए हैं, हो अब तो हम पेट भर के खाना और हमारे अली साहब ने बड़ी जामा बातें की हैं आज के प्रोग्राम के अंदर, शहरी के प्रोग्राम के अंदर, फजीलत रमज़ान के हवाले से बहुत अच्छी बातें की। अब हमारा क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, शहरी का एहतमाम भी करना है, शहरी खाने भी टाइम बड़ा शॉर्ट जो है वो रह गया है। अब डॉक्टर हकीम, प्रोफेसर अस्करी साहब, अली मोहम्मद सिद्दीकी साहब, शजरे दोस्त, यानी कि शजरकारी के हवाले से तो आप नाज़रीन आपने देख लिया उनको कितनी प्यारी प्यारी बातें हुई हैं आज के इस प्रोग्राम के अंदर। और हमारे बाबा दरवेश कलीमी साहब, ज़ैनब चौधरी और सरफराज सागर को इन दुआओं के साथ इजाज़त दीजिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और इस मुल्क और इस कौम की हिफाजत करवाए। पाकिस्तान में जितने इदारे इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, जो दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं, हमारे पाक फौज और और दीगर एजेंसीज, जितने भी लोग, जितने भी एजेंसीज इदारे हैं हमारे इस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, उन सबकी खैर ख्वाही दुआ के साथ आज इस प्रोग्राम से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। स्टॉप। पहले सब जर्म्स सैनिटाइज। मामा, पर इनका क्या? हाँ मैडम, इन दागों में छुपे हुए जर्म्स का क्या करोगी? वो सब राइट कर देगा। राइट? नया एंटीबैक्टीरियल ब्राइट, अब दाग हो या जर्म्स, ब्राइट सब राइट कर देगा। बिल्कुल, नए एंटीबैक्टीरियल ब्राइट का जर्मीशील्ड फॉर्मूला दाग को फाइट करे, जर्म्स को सैनिटाइज करे, पूरे 99.9%। देखा, दाग को लेफ्ट और जर्म्स को राइट कर दिया। ये तो ब्राइट ने सब राइट कर दिया। ब्राइट सब राइट कर देगा। नया ब्राइट एंटीबैक्टीरियल।